Hello everyone. I hope you understood the concept of compensation. You have a notes, okay? I think you already gone through it. So now we will see the types of compensation. There are two types of compensation: direct compensation and indirect compensation. So now we are see the direct compensation. What is the direct compensation? Direct compensation refers to the monetary benefits offered and provided to the employees in return of their services, right? They provide to the organization, which is very simple. We already discussed before this video, before our last video, right? The monetary benefits include, we can see direct compensation, we can call also monetary compensation, we can call also tangible compensation. There are this name of the direct compensation. Okay, so basic salary basic salary include this direct compensation: allowances, uh, rent, house rent allowances, medical reimbursement, leave travel allowances, incentives, bonus, gratuity, provident fund, special allowances. Okay, so there are so many allowances. There are so many. We can see this compensation, we can touch this compensation. So they comes in direct compensation. So they are given at a regular interval at a definite time. Okay, so we will see the step by step. Direct compensation. First, we can see medical reimbursement. What is medical reimbursement? Why we need this allowances, compensation? Organization also look after the health condition of their employees. That is the most important thing. Okay, why? Because health is very much important. Very, we always give the first preference to the health, right? हम हमेशा हेल्थ को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं. दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल इस करंट सिनारियो, राइट? जो अभी करंट सिचुएशन शुरू है, दिस इज़ द पैंडेमिक सिचुएशन, कि हमने अभी क्या किया है, हमने हेल्थ को इम्पोर्टेंट दी है ना? सब छोड़ छाड़ के हम घर पे बैठे हुए थे लास्ट फ्रॉम द 3 मंथ्स. ओके, जब लॉकडाउन शुरू था तब लोगों ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के बारे में सोचा. अब जैसे जैसे वो उससे फाइट करते गए, तब वैसे वैसे गवर्नमेंट ने अनलॉक किया. ये सारी चीज़ें हमारे आँखों के सामने हैं, हमने देखी हुई है. सो हेल्थ इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ऑर्गेनाइजेशन भी यही करती है कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देती है, हेल्थ को देती है. अगर मान लो एक एम्प्लॉयज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा वर्कलोड अगर डाल दिया है, राइट, वो क्या होगा, मेंटली डिस्टर्ब होगा, है ना? और उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी के ऊपर इफ़ेक्ट होगा. प्रोडक्टिविटी के ऊपर अगर इफ़ेक्ट हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इफ़ेक्ट होगा, राइट? सो ओके, सो हेल्थ इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये मेडिकल रिम्बर्समेंट कैसे होता है, हम वो देखेंगे. मान लो आप या आपके फैमिली में से कोई मेंबर अगर हॉस्पिटलाइज्ड होता है, तो उसका बिल रिम्बर्स्ड होता है, हमें रिटर्न मिलता है. ओके, तो ये मेडिकल रिम्बर्समेंट होता है. या फिर उसका पूरा खर्चा कौन उठाता है, ऑर्गेनाइजेशन उठाती है. सो दैट इज़ द बेस्ट फैसिलिटी ऑफ द अवर ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो हेल्थ इंश्योरेंस का वहाँ पे रहता है. The employees are provided with the mediclaims for them and their family members. These mediclaims include health insurance and treatment bill reimbursement. Okay, which is very simple. Special allowances. Special allowances such as the overtime, mobile bills, mobile allowances, meals, commissions, travel expenses, reduced interest loans, insurance, club membership,
are provided to employees to provide them social security and motivate them, which helps in improving the organizational productivity. अब देखो, ओवर टाइम अगर वो पर्सन वो एम्प्लॉय कर रहा है तो वो उसे क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा पैसे, राइट? तभी ओवर टाइम करता है। अगर मान लो 6 घंटे के बाद आपको बोला जाए कि हाँ एक्स्ट्रा ये 2 घंटे आपको काम करना है, तो आप क्या करोगे? आप बिल्कुल भी काम करने की आपकी इच्छा नहीं रहती। बट हाँ, अगर आपको जैसे ही बोला जाता है कि नहीं आपको ओवर टाइम मिलेगा, राइट, तो आप क्या करोगे? हाँ ठीक है, मैं कर लेता हूँ या मैं कर लेती हूँ। दैट इज़ द ओवर टाइम, वो एक्स्ट्रा इनकम रहता है। ओके, सो मोबाइल अलाउंसेस, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में मोबाइल अलाउंसेस अलाउ रहते हैं। फिक्स्ड अमाउंट रहता है, वो मोबाइल अलाउंसेस आपके इंक्लूडिंग रहती है सैलरी में, वो पे हो जाता है, राइट? मिल्स, बहुत बार कंपनीज़ में लंच भी उसमें इंक्लूड रहता है आपके पैकेज में। ये जो सारी एक्सपेंसेस है, ये जो सारी अलाउंसेस है, वो क्या होता है, वो कंपनी और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एम्प्लॉय का ध्यान रखती है। इट मीन्स एम्प्लॉय अगर वहाँ पे काम करता है, इसलिए तो हम बोलते हैं ना कि घर के अलावा हमारा दूसरा घर, इट मीन्स अवर वर्क प्लेस, राइट? सो दिस इज़ अवर सेकंड होम, है ना? सो वहाँ पे हमें वैसे ही ट्रीटमेंट मिलती है जैसे हमें घर पे ट्रीटमेंट मिलती है। तो ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हमें घर के जैसे ट्रीटमेंट देती है, ताकि हम ज़्यादा स्ट्रेस आउट ना हो, ज़्यादा हमें वर्कलोड ना हो, हम रिलैक्स होकर काम कर सकें। क्यों? क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी उस लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन को मिले, राइट? सो ये सारी बहुत सारी क्लब रहता है, मेंबरशिप क्लब में बहुत सारी चीज़ें, क्लब इंक्लूड्स रहते हैं। स्पोर्ट्स क्लब होता है, फैमिली मेंबर क्लब होता है, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में क्रेश होता है। अगर फीमेल एम्प्लॉयज़ है वहाँ पे तो बच्चों का पालना घर वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल रहती है। किड्स को फीडिंग रूम या जो भी है, जो भी अभी लेटेस्ट में जो भी एम्प्लॉयज़ के लिए लगता है फैसिलिटीज़, वो सारी फैसिलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस में अवेलेबल होती है, राइट? और वर्क से अगर आपको कुछ फ्रेश होना है या रिलैक्स होना है, तो रिलैक्सेशन की वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल, ये सारी अलाउंसेस, ये सारी फैसिलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस आपको प्रोवाइड करती है। ओके, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो, राइट? अगर वही आप 6 घंटे एक जगह पे बैठ के काम कर रहे हो तो क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा आपका हेड, राइट? आप जो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, जिस चीज़ की डिमांड है, वो आप फुलफ़िल नहीं कर पाओगे। सो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ की ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देती है। ओके, सो शैल वी मूव? नेक्स्ट इज बोनस. Bonus is paid to the employees during festive season to motivate them and provide them social security. The bonus amount usually amount to 1 month salary of the employee. अब हमने हमेशा से सुना है अपने फादर से, राइट, या अपने किसी दोस्त से, फ्रेंड से, वट एवर, बट मोस्टली हमने अपने पापा से सुना है कि आई गॉट अ बोनस, राइट? और वो बोनस कब मिलता है? फेस्टिव के सीज़न पे, इट मीन्स दिवाली के टाइम पे वो बोनस मिलता है। सो दैट इज़ 1 मंथ सैलरी एक्स्ट्रा। तो उसे हम बोलते हैं, क्यों मिलता है? क्योंकि स्पेशली जो फेस्टिव का सीज़न रहता है, दिवाली, हमारे इंडिया में दिवाली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है, राइट? तो दिवाली विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिव ऑफ अवर इंडिया। सो दिवाली के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, है ना? बहुत ज़्यादा हम
उस पे इन्वेस्ट करते हैं हर चीज़ों के ऊपर, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, हमें उस खर्चे के लिए, एक्स्ट्रा खर्चे के लिए हमें इनकम प्रोवाइड करती है। जो भी अमाउंट रहता है वो हमें प्रोवाइड करती है, राइट, ताकि आपके जो सैलरी है, मंथली सैलरी है, उसके ऊपर प्रेशर ना आए। सो इससे एम्प्लॉय क्या होता है, मोटिवेट होता है। अल्टीमेटली उस बोनस के लिए आप क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज लीव ट्रैवल अलाउंस। These allowances are provided to retain the best talent in the organization. The employees are given allowances to visit any place they wish with their families. The allowances are scaled as per the position of employee in the organization. Now, see, leave allowances बहुत ज़्यादा हर ऑर्गेनाइजेशन में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर किया जाता है लीव अलाउंसेस का। वहाँ पे आप एक स्केड्यूल बनाते हो आपका, जहाँ पे आपके ये लीव अलाउंसेस आपको पेड किया जाता है, राइट, जहाँ जो आप अपने फैमिली को टाइम दे सको, आप अपने फैमिली को लेके बाहर जा सको, राइट। सो ये सारा एक्सपेंसेस कौन उठाता है, ऑर्गेनाइजेशन और आपकी कंपनी ये सारा एक्सपेंसेस उठाती है, राइट। क्यों उठाती है, कि अल्टीमेटली एम ऑफ दिस कि एम्प्लॉय खुश हो, हैप्पी रहे, राइट। कन्वीनियंस, व्हाट इज मीन बाय कन्वीनियंस, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कैब फैसिलिटी टू देयर एम्प्लॉयज। Few organizations also provide vehicles and petrol allowances to their employees to motivate them. अब convenience means transport, we can say, right? बहुत बार हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में बस देखी जाती है, कंपनी की बसेस होती है जो एम्प्लॉयज़ को पिक करती है घर से और कंपनी तक लेके जाती है, कंपनी तक छोड़ के देती है, या फिर कैब होती है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि पेट्रोल अलाउंसेस प्रोवाइड करती है। ये सारी चीज़ें व्हीकल, अगर आपकी ओन व्हीकल है तो क्या करता है, पेट्रोल अलाउंस प्रोवाइड करती है, या आपके पास व्हीकल नहीं है तो कैब या फिर बस जो भी रहता है, व्हीकल अवेलेबल है वो आपके लिए प्रोवाइड करती है। क्यों, अल्टीमेटली क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का एम आपको मोटिवेट करे, राइट। आप फ्री माइंड से, फ्रेश होके आप ऑर्गेनाइजेशन में आए और सेफली, आपके सेफ्टी का भी ध्यान ऑर्गेनाइजेशन रखती है, ओके। ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखो, अगर कई बार क्या होता है, आपका ट्रैवल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है और आपके पास अकोमोडेशन, आपके पास ट्रांसपोर्ट का कोई ये नहीं रहता, ट्रांसपोर्टेशन का कोई ज़रिया नहीं रहता, तो क्या होता है, आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेस्ट, आप वहाँ पे काम, आपका काम बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट एक मैटर करता है कि उस वहाँ पे आना जाना, राइट, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो क्या होता है, एक बस पकड़ो, उसको छोड़ो, दूसरी बस पकड़ो, तो इससे क्या होता है, ट्रैवल में बहुत ज़्यादा आपका खर्चा हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इससे क्या होता है, आप इरिटेट हो जाते हो, राइट। आपके दिमाग में यही आता है कि नहीं यार, मेरा ट्रैवल में बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, सो आई शुड exit this company, I should switch over this organization. So इससे क्या होगा, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इफ़ेक्ट होगा, राइट, ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा। क्यों, क्योंकि फिर अगर वो एम्प्लॉय वहाँ पे सेट है, तो वो सेट होने के बाद अगर वो छोड़ता है, एग्ज़िट करता है, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन को फिर से रिक्रूट करना, उसको फिर से उसको उस तरीके की ट्रीटमेंट देना, सारी चीज़ें समझाना, ट्रेनिंग देना, इसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है और प्लस उसके ऊपर खर्चा होता है, राइट। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन सोचती है, ओके। सो इसीलिए कन्वीनियंस का बहुत ज़्यादा ख्याल ऑर्गेनाइजेशन रखता है। बहुत बार देखा जाता है कि अगर आउट ऑफ द सिटी अगर वो
फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन है तो बसेस वो प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट, हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंसेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।